Bufotod, rana frog, hyla tree frog, salamander, Ichthyopus limbless amphibia, class Reptilia, Cilion turtle, Testudo tortoise, Chameleon tree lizard, Calatus garden lizard, Crocodilus crocodile, alligator, poisonous alligator, Hemidactylus wall lizard, poisonous snakes, Naja cobra, Bangarus cride, Vipera viper, class Aves, Corvus crow, Columba pigeon, Citicula parrot, Stutio ostrich, Pavo peacock, Aptenoids penguin, Neophron vulture, class Mammalia, Oviporous mammal, Ornithorhynchus platypus, Viviporous mammal, Micropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camelus camel, Macaque monkey, Ratus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common dolphin, Belliptera blue whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo lion. Thank you. बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया. प्रतीक्षा, कुठून आहे बेटा तू? सर औरंगाबाद. ओके. स्कूल? राइजिंग स्टार. राइजिंग स्टार. बहुत ही बढ़िया, खूप छान, अभिनंदन, मस्त. ओके, बढ़िया. चलो, गुड लक. प्रतीक्षा इधाते. ओके. नाउ प्लीज पे अटेंशन दोस्तों. We are dealing with, that is the internal structure of heart. We are dealing with दोस्तों internal structure of heart. और हमने बात की है कल, ये जो डायग्राम है फिर से मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा. कल हमने बात की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में. ओके. और दोस्तों ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कहाँ चला गया? ये आएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. See this diagram. This is very important. Okay, this is an internal structure of heart दोस्तों. This is an internal structure of heart. This is right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. RA, LA, RV, LV ऐसे बोलते हैं इसे. ऊपर वाले RA, LA, RV, LV. Now right atrium, it has a 3 opening, okay, which brings about the deoxygenated blood to the right atrium. Number 1, that is a opening of inferior vena cava, which is guarded by Eustachian wall, that is opening of superior vena cava, and opening of दोस्तों coronary sinus, that is guarded by that coronary sinus, which is guarded by दोस्तों Thebesian wall. Now this is a सबसे पहले, उसके भी पहले, these two are the atria. Upper or smaller chamber are the atria, and lower and larger chamber are called the ventricles. Now that atria and ventricle are surrounded by a thick fibromuscular septum. Surrounded by a thick fibromuscular septum called as atrioventricular septum, which separate two atria from two ventricle. Now these are the two atria, and there is a thin muscular wall. Thin कह रहा हूं मैं, thin muscular wall which separate between separate the right atrium from left atrium. इसे कहते हैं दोस्तों interatrial septum, IAS. Okay, Indian Administrative Services, IAS, interatrial septum. Now दोस्तों ये जो interatrial septum है, फिर ये होता है थिक मस्कुलर वॉल होती है. दिस इज बिटवीन टू वेंट्रिकल, इसे कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इसे कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, IVS. नाउ देयर इज अ डिप्रेशन और ऑन द इंटरएट्रियल सेप्टम कॉल्ड एज फोसा ओवैलिस. नाउ दिस इज द राइट एट्रियम, एंड दिस राइट एट्रियम हैज अ ओपनिंग ऑफ 3 veins: inferior vena cava, superior vena cava, and coronary sinus. Inferior vena cava, the wall of inferior vena cava are known as the Eustachian wall. The walls of coronary sinus called as the Thebesian wall, or superior vena cava does not have any wall. Now this is the left atrium, and you all know that right atrium receive the deoxygenated blood from the different part of the body. You all know that superior vena cava carries the blood from upper part of body, that is head, means brain आ गया, chest or upper limb. Inferior vena cava carries the blood from the lower part of body, abdomen or lower limb. Or coronary sinus, okay, carries the blood from the heart itself. Now this is left atrium, and those, so there are 4 pulmonary veins which open into the left atrium, and that pulmonary veins brings about the oxygenated blood from the lungs into the left atrium. Now these are those two
वेंट्रिकल्स, बात करते हैं राइट वेंट्रिकल्स। तो उससे भी पहले बात करेंगे, ये है दोस्तों, ये जो दो ओपनिंग दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। These are the wall present between atria and ventricle, इसलिए नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। नाउ जो राइट साइड में होते हैं बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, उन्हें कहते हैं दोस्तों ट्राइकस्पिड वॉल, दे हैव 3 फ्लैप्स और 3 कस्प। जो लेफ्ट साइड में होते हैं उन्हें कहेंगे दोस्तों दैट इज अ बाइकस्पिड वॉल और माइट्रल वॉल, बिकॉज दे हैव 2 cusp, they are present between left atrium and left ventricle. Now there are a special fibrous cord, उसे कहते हैं दोस्तों chordae tendineae. These are the special fibrous cord called as a chordae tendineae, and they are attached between, that is flaps of wall and papillary muscle of ventricles. These are the papillary muscles of ventricles. ये जो yellow color के दिख रहे हैं दोस्तों, these are specialized muscle, okay, papillary muscles of ventricle, and the chordae tendineae are attached between the papillary muscle and that is a cusp or flaps of wall. फिर दोस्तों ये जो right ventricle है, ये थोड़ा सा इसका वॉल जो है वो थीन होता है और इससे अराइज होता है दोस्तों पल्मोनरी ट्रंक, और दैट पल्मोनरी ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, एंड दैट पल्मोनरी ट्रंक दोस्तों यहाँ पे 2 सेमिल्यूनर वॉल होते हैं वेंट्रिकल में, पल्मोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल। पल्मोनरी ट्रंक इज गार्डेड बाय पल्मोनरी वॉल, and that pulmonary trunk carries deoxygenated blood toward the lungs. Now ये left ventricle का दोस्तों thickest wall होता है left ventricle का, 3 times thicker than the right ventricle, and from left ventricle arises aorta, and the opening of aorta is guarded by दोस्तों that is a again semilunar wall which has made up of 3 cusp, और उसे कहते हैं दोस्तों aortic wall। ये क्लियर है, ये क्लियर है या नहीं? ओके ओके ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है ना? सेमिल्यूनर क्योंकि वो हाफ मून शेप्ड होते बेटा, दीज आर द हाफ मून शेप्ड। फंक्शन ऑफ पैपिलरी मसल मैं समझाता हूं, ओके। ये फंक्शन ऑफ पैपिलरी मसल दोस्तों, ये जो है कॉर्डा टेंडिनी पैपिलरी मसल, कॉर्डा टेंडिनी प्रिवेंट दी ये कोलैप्सिंग ऑफ वॉल और कोलैप्सिंग ऑफ फ्लैप्स ऑफ दिस वॉल इनटू एओर्टा, इसे प्रिवेंट करते हैं, एंड द पैपिलरी मसल प्रोवाइड अ साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ दिस कॉर्डा टेंडिनी, और कॉर्डा टेंडिनी दोस्तों प्रिवेंट द बैकवर्ड कोलैप्सिंग ऑफ वॉल इनटू द एओर्टा, ये कॉन्सेप्ट है। फिर हमने देखा दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ, फिर हमने देखा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एट्रिया, तो अपर एंड रिसीविंग चेंबर है, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। Inferior vena cava, it bring the blood from the lower part of the body like abdomen and lower limb. Opening of inferior vena cava is guarded by Eustachian wall. Superior vena cava, it bring the deoxygenated blood from the upper part of body like head, thorax and upper limb. और coronary sinus दोस्तों, it bring the blood from heart itself, and coronary vein open into coronary sinus, that coronary sinus open into the right atrium. इथपर्यंत आपण बोललो होतो. Suppose these are the 2 right and left coronary vein. This is a cavity called as a coronary sinus, और ये दोस्तों right atrium, ये है right atrium, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आज डिस्कस किया। तो दोस्तों बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम। नाउ ये जो लेफ्ट एट्रियम है दोस्तों, याद रखो, कितने बार लिखो, लेफ्ट एट्रियम इज स्मॉलर देन राइट एट्रियम and it receive, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, it receive oxygenated blood, it receive oxygenated blood, okay, okay, from lungs, it receive oxygenated blood from lungs via 4 pulmonary vein, via 4 pulmonary vein। ये pulmonary vein होके भी oxygenated blood कैरी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना ही याद रखो about the left atrium, about the left atrium, it is smaller than, याद रखो, it is smaller than right one, it is smaller than the right atrium, बस it is smaller than the right atrium। now दोस्तों ये हो गया एट्रिया के बारे में। जो दूसरा मुद्दा है that is about the नंबर 2 पे है दोस्तों, that is now यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका नाम है that is a
इंटर एट्रियल सेप्टम, क्या नाम है? इंटर एट्रियल सेप्टम। अब ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम क्या है दोस्तों? इट इज अ थिन मस्कुलर वॉल है, क्या है? बिटवीन टू एट्रिया, इट इज थिन मस्कुलर वॉल है, इट इज अ थिन मस्कुलर वॉल बिटवीन टू एट्रिया, बिटवीन टू एट्रिया दोस्तों, इसे कहेंगे दैट इज interatrial septum. Now it has a one depression on the right side known as दोस्तों, on right atrium, on right side known as दोस्तों fossa ovalis. That IAS, interatrial septum, has depression, not the opening, has a depression on right side known as fossa ovalis, known as the fossa ovalis, याद रखो. And this fossa ovalis दोस्तों, it is a remnant of a opening during fetal circulation known as a foramen oval between the two atria. Okay, ये जो fossa ovalis होता क्या है? fossa means depression, जो oval shaped है. fossa ovalis is a remnant of, क्या याद दिलाता है? remnant of an opening, एक opening थी between an opening at atrial septum, at interatrial septum, एक opening थी at interatrial septum known as दोस्तों, known as foramen oval. तो ये कंफ्यूज होता है हमेशा कि फोरामेन ओवल क्या है और फोसा ओवालिस क्या है. फोरामेन ओवल इन दोस्तों फीटल सर्कुलेशन कब होता है? ये ओपनिंग कब है? फीटल सर्कुलेशन. इसकी वजह से राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता था. तो ये फोरामेन ओवल इज अ पार्ट ऑफ फीटल सर्कुलेशन. अभी किसी के अडल्ट में होता है क्या? नहीं. अगर कभी कभी दैट फोरामेन ओवल क्लोज नहीं होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और फिर वो सपोज बर्थ के 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद क्लोज होता है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उस बच्चों को. सो दोस्तों, और फिर पिक्चर वाले बोलते हैं कि इस लड़की के दिल में छेद है, तो ये ऐसा होता है. तो छेद मतलब ये फोरामेन ओवल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम, याद रखो. फिर दोस्तों 2 नंबर पे पहला हमें 4 चीजें देखनी है जब व्हेन वी आर डीलिंग विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. 4 चीजें हैं: एट्रिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, वेंट्रिकल एंड सेमिल्यूनर वॉल. तो नंबर 2 दोस्तों दैट इज बी पे बात करते हैं, दैट इज ये होगा. आगे चलते हैं. तो दोस्तों बात करते हैं दैट इज बी, और बी में है दोस्तों दैट इज एट्रियो, मींस एट्रियम के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में. इसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल. एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल मींस दोस्तों देयर इज ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द atria and ventricle. Now there is a concept called the atrioventricular septum. So atrioventricular septum has a 2 opening, on the one on right and another on the left side, known as दोस्तों atrio, and they are guarded by wall known as the atrioventricular wall. That is 2 opening, याद रखो. What is the concept of atrioventricular wall? That is 2 openings presents at atrioventricular septum. ये शब्द समझ लो. 2 openings are present at atrioventricular septum. Okay, each on दोस्तों right and left side. Each on, that is right and left side. Right and left side, and these openings are guarded by wall, and these two opening are guarded by दोस्तों, are guarded by separate wall, are guarded by separate walls known as atrioventricular wall, known as atrioventricular walls, known as दोस्तों atrioventricular walls. तो ये जो atrioventricular walls है, there are 2 types.
ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स है दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स, इन्हीं को मैं लिखता हूं। मान लो ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, देयर आर टू टाइप्स दोस्तों। वन इज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, और दोस्तों दैट इज अ लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, और दोस्तों बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। This bicuspid wall is also called as दोस्तों mitral wall. It is also called as a mitral wall. Now please pay attention. ये जो tricuspid wall है, it is present on दोस्तों right side. It is present on right side. And ये जो bicuspid wall है दोस्तों, it is present on left side. Now please pay attention. लिखेंगे कैसा, ये important है। Tricuspid wall दोस्तों, it is right AV वॉल है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है, ये राइट AV वॉल है। और बाइकस्पिड वॉल है कौन, क्या है दोस्तों, इट इज लेफ्ट AV वॉल है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। मैं जानबूझ के AV वॉल लिख रहा हूं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल लिखते हैं ऐसा, लोग इसे AV वॉल बोलते हैं। AV वॉल के दो टाइप है दोस्तों, AV वॉल लोग इसे बोलते हैं AV वॉल, याद रखो, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ये भी उनका नाम है। तो जो है ये जो दोस्तों ट्राइकस्पिड वॉल है, वॉल और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ये ट्राइकस्पिड वॉल है दोस्तों, इट कंटेन थ्री कस्प, कंटेन्स थ्री कस्प, या फिर दूसरा शब्द है फ्लैप्स, इट कंटेन थ्री कस्प या फिर फ्लैप्स। और जो बाइकस्पिड वॉल है दोस्तों, इट कंटेन कितने, कंटेन टू कस्प या फिर फ्लैप्स, उसे कस्प या फिर फ्लैप्स कहा जाता है, इसलिए बाइकस्पिड है। नाउ ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है, प्रेजेंट बिटवीन, ट्राइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन दोस्तों, प्रेजेंट बिटवीन दैट इज राइट, प्रेजेंट बिटवीन दोस्तों राइट एट्रियम, प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल, उजवा तीन शब्द है, उजवा ट्राइकस्पिड। और ये बाइकस्पिड वॉल दोस्तों, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दैट इज लेफ्ट एट्रियम, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है माइट्रल वॉल। क्या पता कब कल, अगर आप अभी तो आप समझ रहे हो कि कौन सा वॉल कहाँ पे, पर क्या पता फ्यूचर में आप कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, कार्डियोवास्कुलर सर्जन बनोगे और आप ये वॉलोप्लास्टी वगैरह कर सकते हो, क्या पता। सो दोस्तों ये है दो वॉल, इसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। और इनका क्या काम है, फंक्शन है दोस्तों, दे मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, they maintain the unidirectional flow of blood from atria to ventricle and prevent the backward flow of blood from ventricle to atria. So function क्या है इनका, function क्या होता है दोस्तों, function जो है, function इन वॉल का जो है दोस्तों, maintain, important है, maintain unidirectional, maintain दोस्तों unidirectional flow of blood, maintain unidirectional flow of blood, कहां से कहां तक, from दोस्तों from atria to ventricle, from atria to ventricles, ये उसका काम है। these are दोस्तों that is AV wall, समझ में आ रहा, these are the AV wall, are you getting me or not दोस्तों, ये है AV wall, समझे, these are the AV wall, yes or no, AV wall, ओके ठीक है, आता क्लियर है, एवी वॉल दोस्तों, सिंपल सी बात है। इसके पहले भी हमने बात की है एबी वॉल, ओके। नाउ दोस्तों एबी हो गया, अभी सी है वेंट्रिकल्स, अभी सी क्या है, दैट इज वेंट्रिकल्स, अभी सी है दोस्तों वेंट्रिकल। तो नाउ वेंट्रिकल्स में दोस्तों पहले बात करते हैं, दैट इज अ राइट वेंट्रिकल, और फिर मैं बात करूंगा लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ दिस राइट वेंट्रिकल जो है दोस्तों, राइट वेंट्रिकल्स, ओके,
right ventricle pumps the blood into pulmonary, pumps the deoxygenated blood into pulmonary trunk. ये जो right ventricle दोस्तों it is smaller होता है left ventricle से. It pumps the blood, it pumps the blood, it pumps the blood, it pumps the blood. वो भी कौन सा blood? Deoxygenated blood. It pumps the deoxygenated blood, deoxygenated blood into pulmonary trunk, into pulmonary trunk, into pulmonary trunk. मुझे ये बताना है यहाँ कि यहाँ पे pulmonary trunk होता है, which is divided into, which is subdivided into, which is subdivided into, which is subdivided into दोस्तों, that is right and left, which is subdivided into right and left pulmonary artery, which is subdivided into right and left pulmonary artery. ये याद रखो, right and left pulmonary artery. ये हो गया right ventricle. दोस्तों बात करते हैं that is concept of left ventricle के बारे में. Now ये जो left ventricle है, left ventricle, तो दोस्तों it pumps out oxygenated blood. It pumps out oxygenated blood into the aorta, और उसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं दोस्तों. नाउ याद रखो, ये हो गया. नाउ both ventricle, both the wall of both ventricle दोस्तों, wall of both ventricle are lined by muscle. Ventricles are lined by a special muscles known as दोस्तों, उनका नाम है that is papillary muscle. उनका नाम क्या है? papillary muscles. उनका नाम है दोस्तों that is papillary muscles. उनका नाम है papillary muscles. Now दोस्तों there is a concept of papillary muscle के बाद एक concept आएगा that is concept of chorda tendineae. क्या concept आएगा दोस्तों? chordae tendineae. Now क्या concept है chorda tendineae? These are the specialized fibrous cord attached with the flaps of wall, attached between flaps of wall and दोस्तों papillary muscle of ventricles. इसे कहते हैं chorda tendineae, and they prevent the collapsing of backward collapsing of flaps into atria. समझाता हूँ. So ये जो chorda tendineae दोस्तों, these are a special fibrous cord है. These are chorda tendineae. cord म्हणजे टेंडन लाइक है. टेंडन म्हणजे एक स्ट्रक्चर असतं मसल के आगे जो आता है टेंडन, लाइक दिस, या ऐसा स्ट्रक्चर होता है वायर जैसा टेंडन. ओके, सो दोस्तों these are special fibrous cord है. These are special fibrous cords that is called the chorda tendineae. त्यांचे अटॅचमेंट कुठे आणि फंक्शन कुठे? उनका स्ट्रक्चर क्या? स्पेशल फाइबरस कॉर्ड है दोस्तों. उनके अटैचमेंट कहाँ पे? ये जो कॉर्डा टेंडिनी है, क्वेश्चन आएगा अटैचमेंट. ये दोनों इसमें है, हाँ, दोनों वेंट्रिकल में अटैचमेंट. सो दे आर कॉर्डा टेंडिनी दोस्तों, दे आर अटैच्ड बिटवीन, दे आर अटैच्ड at one side, they are attached at one side to the flaps of wall, flaps of AV wall, atrioventricular wall के flaps के साथ, and on other side to the papillary muscles of ventricle, papillary जो muscles होते हैं, papillary muscles of ventricles, वहां पे अटैच है. ventricles वहां अटैच है, और इनका फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग, बैकवर्ड कोलैप्सिंग ऑफ फ्लैप्स इनटू एट्रिया. फंक्शन क्या है दोस्तों इनका? व्हाट इज द फंक्शन? समझाता हूं. फंक्शन ऑफ कॉर्डा टेंडिनी, दोस्तों प्रिवेंट बैकवर्ड कोलैप्सिंग ऑफ एट्रिया. समझाता हूं, जस्ट वेट. प्रिवेंट बैकवर्ड कोलैप्सिंग, ये एक वीडियो है, हम बाद में देखेंगे. बैकवर्ड कोलैप्सिंग ऑफ फ्लैप्स, backward collapsing of flaps
इनटू एट्रिया हो सकता है, इनटू द एट्रिया, और ये ना होना, ये होना नहीं चाहिए, इसलिए ये कॉर्डा टेंडेनी काम करते हैं, इसलिए ये कॉर्डा टेंडेनी काम करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं दोस्तों? ओके, यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं? यस और नो। मैंने बोला था कॉर्डा टेंडेनी कैसे काम करते, कॉर्डा टेंडेनी कैसे काम करते दोस्तों, ये हो गए कॉर्डा टेंडेनी, और ये दोनों वेंट्रिकल में है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये पैपिलरी मसल आर प्रेजेंट आल्सो इन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कुछ इस तरीके से काम करेंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मान लिया हमने कि ये दोस्तों सपोज ये है हार्ट, और इस हार्ट में दोस्तों व्हाट इज दिस, मान लो ये है इंटर एट्रियल सेप्टम है, मान लो ये है इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि थिक फाइबरस होता है। ये मस्कुलर नहीं है, मैं बताना चाहूंगा ये फाइबरस है, ये मस्कुलर बिल्कुल नहीं है, ये फाइबरस है, ये फाइबर से बनता है। इसका नाम है बच्चों दैट इज थिक। ये है, क्या है ये, दिस इज दोस्तों एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द थीन वॉल्ड, मान लो ये थीन वॉल्ड है दोस्तों, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या नाम है इसका, इंटर एट्रियल सेप्टम है, थीन वॉल्ड है, इंटर एट्रियल सेप्टम है, थीन वॉल्ड। फिर दोस्तों ये थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, फिर से ये थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये तीन सेप्टम तो पहले जान लो, इंटर एट्रियल सेप्टम, सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आता नाव देतो मी त्यांना, लक्षात ठेवा। दिस इज आर ए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, आर ए एल ए आर बी एल वी। वेळ लागेल थोडं समजायला। सो दोस्तों दिस इज एन वॉल ऑफ, लिखना बाकी था पर फिर पहले लिखा है, दिस इज अ वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल व्हिच इज मच थिकर देन द wall of right ventricle. This is wall of left ventricle much thicker than the wall of right ventricle. Now तो ये तीन सेप्टम हो गए, तीन सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसको दो ओपनिंग है, इसको दो ओपनिंग है, और ये जो ओपनिंग है दोस्तों ऑन राइट साइड, सपोज ये बड़ी निकालता हूं मैं, ये एक ओपनिंग है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक ओपनिंग है दोस्तों। ओके ओके, यहाँ पे एक ओपनिंग है ऑन लेफ्ट साइड। नाउ ये जो ओपनिंग है ऑन द क्या बोलेंगे राइट साइड, उसको सपोज मान लो कितने फ्लैप्स है, तीन, मर्सिडीज जैसे। इस इधर कितने फ्लैप्स है, कितने, यहाँ पे दो ही है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये पैपिलरी मसल्स है, दीज आर द पैपिलरी मसल्स, दीज आर द पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकल्स। तो ये पैपिलरी मसल्स है दोस्तों, और पैपिलरी मसल्स और दोस्तों पैपिलरी मसल्स और ये फ्लैप्स के यहाँ पे एक अटॅचमेंट, यहाँ पे कॉर्ड लाईक दोऱ्यासारखं स्ट्रक्चर आहे, हे फ्लॅप्स इकडे खाली ओपन होतात लाईक दिस, हे असे वापस जाऊन येत अट्रियामध्ये, बॅकवर्ड कोलॅप्सिंग होणे, बॅकवर्ड कोलॅप्सिंग, म्हणून त्याच्यासाठी एक अटॅचमेंट है, उन्हें कहते हैं दोस्तों, इनका नाम है दोस्तों कॉर्डा टेंडेनी, इन्हें कहते हैं कॉर्डा टेंडेनी, इनका नाम है कॉर्डा टेंडेनी, याद रखो यह है कॉर्डा टेंडेनी। और कॉर्डा टेंडेनी क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिंग द बैकवर्ड फ्लो ऑफ, बैकवर्ड कोलैप्सिंग प्रिवेंट कर रहे हैं, ये है दोस्तों कॉर्डा टेंडेनी, याद रखो, these are the chorda tendini। समझे, this is the basic concept, this is the basic concept दोस्तों। these are दोस्तों कॉर्डा और कॉर्डे टेंडेनी नंबर वन। now these are दोस्तों papillary muscles, these are papillary muscles, papillary muscles, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता बच्चों को, these are the papillary muscles, these are the papillary muscles दोस्तों, these are the AV wall, इसे हम कहेंगे ये जो दो वॉल है, this is an tricuspid wall, cuspid wall
दोस्तों ये है मान लो बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल क्योंकि दो ही कस्प है, बाइकस्पिड वॉल क्योंकि इसमें दो ही कस्प है दोस्तों। ओके, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग ये हुआ है यहाँ पे दोस्तों। एक्चुअली ये ट्राइकस्पिड कुछ ऐसा चाहिए था, ट्राइकस्पिड वॉल, और ये कुछ ऐसा चाहिए था, दैट इज अ बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। वापस आता हूं, मान लो ये सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट है। और ये क्या करेगा, ये वॉल को वापस इधर नहीं जाने देंगे, ये फ्लैप्स को इधर नहीं जाने देंगे, ये ऐसा ओपन होगा सिर्फ। इसकी मूवमेंट इज लाइक दिस, इसकी मूवमेंट इज लाइक दिस, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ब्लड फिर वेंट्रिकल से एट्रिया जाता, ये अच्छा नहीं है। सो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक डिप्रेशन है, और इस डिप्रेशन का नाम क्या है, इस डिप्रेशन का नाम है दोस्तों दैट इज फोसा ओवैलिस। इस डिप्रेशन का नाम क्या है, फोसा ओवैलिस। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज दोस्तों इंटर एट्रियल सेप्टम, IAS। व्हाट इज दिस, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, IVS। और ये बड़ा सा क्या है दोस्तों, ये बड़ा सा क्या है, ये है, इसे कहेंगे दैट इज अ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, AVS। समझे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, AVS। क्लियर है, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर दोस्तों? ओके, बॅकवर्ड कोलॅप्सिंग नाही समजलं का? बरं, ते डायग्राम मुवमेंट मध्ये सांगितल्यावर कळेल, अरे ही अशीच मुवमेंट आहे रे इथल्या वॉलची, लाइक दिस, ऐसा। सपोज ये ऐसी मूवमेंट है, मान लो ये मूवमेंट कैसी है, लाइक दिस, ये मूवमेंट कुछ ऐसी है, यहाँ पे मूवमेंट कुछ ऐसी है। अगर ये ऐसी मूवमेंट होती तो फिर ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में जाता। तो ये है बैकवर्ड कोलैप्सिंग ऑफ फ्लैप्स, ये नहीं होने देते क्योंकि ये फ्लैप्स आर अटैच्ड टू दोस्तों, कहाँ अटैच है, कॉर्डा टेंडनी को। तो ये सपोज बॅकवर्ड कोलॅप्सिंग हो रहा है, पण मग हे इथं अटॅच आहेत ना, त्यामुळं ते बॅकवर्ड कोलॅप्सिंग होणार नाही एट्रिया। और बॅकवर्ड कोलॅप्सिंग म्हणजे त्या साईडला ओपन होणार नाही। जसं एखादा घराचा दरवाजा एकाच साईडला ओपन होतो, तसं आहे घराचा दरवाजा तुम्ही बघा दोन साईडला रिअरली ओपन होतो, मॅक्सिमम तो एकाच साईडला ओपन असतो। कुठल्याही घराचा दरवाजा मॅक्सिमम एकाच साईडला ओपन होतो, दोन्ही साईडला ओपन होतं का नाही, एकाच साईडला ओपन होतो, तसा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेंट्रिकल के बारे में। बात की हमने, सेमिलुनर वॉल हो गया, सब हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों दैट इज अ पैपिलरी मसल्स होते हैं। समझाता हूं, नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन। Papillary muscles, these are the specialized muscle दोस्तों। See this, ओके। अब ये डायग्राम थोड़ा सा इधर देखना पड़ेगा, फिर भी दूसरा डायग्राम लेते हैं। See this, सिंपल, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ओके, वाओ, see this, see this। पहले इमेजेस बनाएंगे धीरे धीरे और फिर बाद में देखेंगे। See this, नाउ यहां पे जो है, नाउ दिस इज दोस्तों माइट्रल वॉल। कितने कस्प है, दो ही, 1 और 2, 1 और 2। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। नाउ सी दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों कॉर्डा टेंडेनी। ये कॉर्डा टेंडेनी, ये कॉर्डा टेंडेनी, दीज आर द स्पेशल कॉर्ड बिटवीन, दीज आर अटैच्ड टू द फ्लैप्स। और दोस्तों ये है पैपिलरी मसल। ये कैसे है, दीज आर द पैपिलरी मसल्स, दीज आर पैपिलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल। दोस्तों ये पैपिलरी मसल्स है, और एक साइड पे वो जो कॉर्डा टेंडेनी है, at one side they are attached to the papillary muscle and at another side they are attached to दोस्तों flaps of the mitral wall। तो backward collapsing means छत्री कशी उलटी होते, अम्ब्रेला उलटी होऊ शकते ना, तसं होऊ देत नाही ते, ह्याला इकडं असं जाऊ देणार नाही। समजतंय? अब क्लियर है, अब क्लियर है दोस्तों? वीडियो देखेंगे, वीडियो बाद में देखेंगे, पहले धीरे धीरे धीरे, डायरेक्ट वीडियो देख के बहुत सारी चीजें मिस करोगे उस वीडियो में।
पहले धीरे धीरे धीरे, ये क्लियर है? सो दिस इज कॉन्सेप्ट दोस्तों कॉर्डा टेंडिनी, ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट वेंट्रिकल और उसका वॉल देखो कितना थिक है, देखो अपेक्स इज मेड अप ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, समझे आप? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, और यहाँ पे क्या दिख रहा है पता है आपको? यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक ब्लू और एक ये है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक ब्लू है, सपोज मान लो यहाँ पे ऐसा ब्लू है एक, और एक रेड है। क्या दिखता होगा आपको? ये क्या है? दिस आर द कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स है दोस्तों। दिस आर द कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स, समझे? कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स। नाउ ये क्लियर है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्डा टेंडेनी पैपिलरी मसल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये सब सपोज मैंने लेफ्ट साइड में दिखाया, ऐसा ही राइट साइड पे भी होगा। ये मैंने अभी लेफ्ट साइड का दिखाया, ऐसा ही दोस्तों राइट साइड में भी होता है। ये मैंने लेफ्ट साइड का दिखाया, ऐसा ही राइट साइड में होगा। देखो यहाँ पे और क्लियरिटी है, यहाँ पे और भी क्लियरिटी है। See this? ये हार्ट क्या किया आहे? हार्ट लाता हे असं फ्रूट कोणतं कापतो आपण? त्याच्या दोन असं करून ठेवतो. असं फ्रूट कोणतं कापतो? कट करून त्याचे दोन भाग करून ठेवतो. कुठलं फ्रूट आपण असं कट करतो? असं कट करून त्याचे दोन भाग ठेवतो. कोणतं? ऍपल. ऍपल 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 नाही कट करत असं आपण सहसा. पपई कट करतो. पपई 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 कट करतो. मँगो पण नाही, मँगोला पण कोयमध्ये पपई. पपई कट केली आणि तिचा हा वरचा पार्ट आहे, हा खालचा पार्ट आहे. इमॅजिन करा. ह्याच्याकडे तुम्ही नका लक्ष देऊ. हा मायट्रल वॉल आहे आणि समजा हा कोणता आहे? ट्रायकस्पिड वॉल आहे. तुम्ही लक्ष द्या. तर मग हे काय? दिस आर द कॉर्डा टेंडेनी, दिस आर द पैपिलरी मसल. सी दिस पोस्टीरियर मीडियल पैपिलरी मसल से ये कॉर्डा टेंडेनी उसके समझ में आ रहा है या नहीं? वो फ्लॅप्स और कस्प है वॉल के, समझे? गावा कट करतो आपण तसा. यस. सो दोस्तों दीज आर द कॉन्सेप्ट, दीज आर द कॉन्सेप्ट. वीडियो हम बाद में देखेंगे, हम वीडियो हम बाद में देखेंगे. ये क्लियर है? नाउ ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नाउ प्लीज पे अटेंशन. नाउ ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. This is an internal structure of heart. ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आता आणखी एक महत्वाचं, दॅट इज वॉल ऑफ हार्ट. अशा टायटल खाली आपण काही गोष्टी बघूया. वॉल ऑफ हार्ट दोस्तों. नंबर 1 दैट इज पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम ये आउटर मोस्ट वॉल है, ये आउटर वॉल होगी पेरिकार्डियम. नंबर 2 दैट इज अ मायोकार्डियम. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मायोकार्डियम. ये मिडल वॉल होती है दोस्तों. इसी की मायोकार्डियम मिडल वॉल है. और दोस्तों फिर होता है नंबर 3 पे दैट इज अ
एंडोकार्डियम। नंबर 3 पे क्या है दोस्तों, एंडोकार्डियम, और ये इनर वॉल है, एंडोकार्डियम इनर वॉल है या फिर इनर लेयर है। नाउ ये जो मायोकार्डियम है दोस्तों, ये मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल, मेड अप ऑफ स्पेशल कार्डियक मसल। कार्डियक मसल स्पेशल होते हैं दोस्तों, बाकी के जो मसल है स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल उससे अलग होते हैं। सो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम में आपको पता होना चाहिए। ये वॉल ऑफ हार्ट बोल सकते हैं अपन, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, दैट इज अ वॉल ऑफ हार्ट दोस्तों, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये जो मायोकार्डियम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, उसमें मसल्स होते हैं, and these muscles they undergo contraction and relaxation, and because of that contraction and relaxation जो पंपिंग एबिलिटी है हार्ट की वो मेंटेन होती है। पंपिंग, हार्ट इज अ ऑर्गन व्हिच पंप्स द ब्लड, और दोस्तों पंपिंग पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ये मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, याद रखो। ओके, कार्डियक मसल मींस कार्डियोलॉजी, that is related with the cardiology means study of heart, और उनके मसल को कहा जाता है कार्डियक मसल। सो मायोकार्डियम, पेरी मींस सराउंडिंग, यहाँ पे पेरी का मतलब क्या है दोस्तों, एकदम सराउंडिंग वाला, पेरी मतलब सराउंडिंग, ऐसा कार्डियम, ऐसा हार्ट का वॉल जो सराउंडिंग है मींस आउटर है। मायो मींस मसल, जो मसल से बना है, और कैसे मसल, कार्डियक मसल से बना है, ऐसा लेयर हार्ट का, इसे कहते हैं मायोकार्डियम। एंडो मींस इनर, एंडो मींस दोस्तों इनर, यहाँ पे पेरी का मतलब होता है आउटर, और यहाँ पे मायो का मतलब होता है मसल, ये मस्कुलर लेयर है। सो एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, दीज आर द थ्री लेयर ऑफ हार्ट दोस्तों, याद रखो, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ हार्ट। सपोज मान लो दीज आर वैसे, हाँ अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है पर मैं क्लियर करना चाहूंगा। नाउ सी दिस इमेज, क्या दिसतंय का तुम्हाला? ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ प्लीज पे अटेंशन। सपोज दोस्तों दिस इज एन वॉल ऑफ हार्ट, उसके लेयर होते हैं, सबसे इनर वाला है एंडोकार्डियम, सबसे इनर वाला एंडोकार्डियम, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे थिक होता है दोस्तों, दैट इज ये वाला मायोकार्डियम, ये वाला, दिस इज मायोकार्डियम, यहां तक मायोकार्डियम है दोस्तों, दिस इज एन मायोकार्डियम, ये वाला लेयर मायोकार्डियम। और फिर आता है पेरिकार्डियम। नो पेरिकार्डियम में दो है दोस्तों, एक है विसरल पेरिकार्डियम, उसका एक स्पेशल नाम दिया है इपिकार्डियम, और फिर दोस्तों पैराइटल पेरिकार्डियम। ये विसरल है, ये वाला दिया है विसरल, और ये पैराइटल बीच में पेरिकार्डियल कैविटी, और फिर एक फाइबरस पेरिकार्डियम है जो कि सबसे आउटर मोस्ट है, फाइबरस पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के 3 है, फाइबरस पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल। तो विसरल पेरिकार्डियम इज अटैच्ड टू द विसरा, विसरा मींस मेन जो ऑर्गन होते हैं उन्हें कहते हैं विसरा, सो इट इज अटैच्ड टू द हार्ट, दैट इज विसरल पेरिकार्डियम। सो पहले याद रखो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम के the layer of pericardium which is closely associated with the myocardium, that is दोस्तों visceral pericardium. Now there is a cavity between visceral and parietal pericardium called as a pericardial cavity, और फिर एक फायबरस लेयर होता है एकदम आउटर साइडला, त्याला म्हणायचं फायबरस पेरिकार्डियम, हे माहिती असू द्या। दिस इज द वॉल ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम के 3 पार्ट है, पर द कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन पेरिकार्डियल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन विसरल एंड पैराइटल पेरिकार्डियम, ये वॉल होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, जब भी हार्ट अटैक आता है तो सपोज यहाँ पे
ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, हार्ट अटैक यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, और इतना ही पार्ट काम करना बंद कर देता है, उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। अगर ये पार्ट बहुत ही ज्यादा होगा, सपोज मान लो अगर इतना बड़ा पार्ट इन्वॉल्व होता है, that will lead to the sudden death, डेथ हो सकती है जगह पे ही। पर हार्ट अटैक आने के बाद डेथ नहीं होती, क्योंकि हार्ट तो काम कर रहा है पर कुछ पार्ट उसका काम नहीं कर रहा है दोस्तों, ये होता है, याद रखो। दिस इज द वॉल ऑफ और लेयर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट, लेयर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट दोस्तों, लेयर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ हार्ट, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। कार्डियोलॉजी में स्टडी ऑफ हार्ट, ये सबको पता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मतलब दोस्तों स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट। तो यहां से आगे जब भी शब्द समथिंग रिलेटेड विद द कार्डियक, मतलब इट इज रिलेटेड विद द हार्ट, समथिंग रिलेटेड विद द कार्डियक मतलब इट इज रिलेटेड विद द हार्ट। ये हो गया। कल बात करेंगे दोस्तों जो कंडक्शन होता है, जो डिफरेंट टाइप के नोडल टिश्यू है उसके बारे में। हार्ट के डिफरेंट टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं, जैसे कि एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीस, ओके, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, राइट हेवी बंडल, लेफ्ट हेवी बंडल, परकंजे फाइबर। तो ये क्या होता है? हार्ट पता है आपको, ये ऑटो एक्साइटेबल है, खुद का एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करता है। तो एक स्टोरी के साथ सुनेंगे हार्ट काम कैसे करता है। पर दो चीजें याद रखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड दोस्तों सिस्टोल, और रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज कॉल्ड दोस्तों डायस्टोल। ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। दो चीजें, दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टोल किसे कहेंगे, या फिर सिस्टोल और डायस्टोल। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए लाइफ में। इसके पहले भी आपने सुने होंगे दोस्तों सिस्टोल और डायस्टोल, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है दोस्तों, हमेशा याद रखो, इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। और सिस्टोल के दरमियान ब्लड को पंप किया जाता है, और दोस्तों इसे कहते हैं डायस्टोल, इट इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल, या फिर मैं डायरेक्ट हार्ट ही बोलता हूं, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को कहेंगे दोस्तों दैट इज डायस्टोल। ये दो शब्द बहुत लाइफ टाइम आपके काम आने वाले हैं, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। ये याद रखो। व्हाट इज द थर्ड अटैक टू सेम पर्सन? ग्रेट, हाँ, चांस तो डेथ तो बढ़ता है, पहला अटैक आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो डेथ चांसेस तो बढ़ते हैं दोस्तों, यही याद रखो। बस कल बात करेंगे कंडक्शन सिस्टम के बारे में, और फिर मुझे जो पढ़ाना है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मुझे पढ़ाना है आपको दो चीजें, एक है कार्डियक साइकिल और दूसरा है ईसीजी। मैं इतना स्लोली क्यों पढ़ा रहा हूं, कि अगर मैं फास्ट भी पढ़ा सकता हूं, मगर मुझे ये पता है कि अगर आपको प्रॉपर एनाटॉमी पता नहीं है, प्रॉपर आपको तो फिजियोलॉजी नहीं समझेगी, ये बेसिक है। एट्रिया वेंट्रिकल ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको फिजियोलॉजी भी नहीं समझेगी, तो इसलिए मैंने स्लो पढ़ाया, ताकि कार्डियक साइकिल आपको फटाक से पता चले। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय। इज द मूवमेंट ऑफ हार्ट ड्यू टू द मायोकार्डियम in heart attack, the cardiac muscle stop its movement, so when give shock, does the shock activate this cardiac muscle? yes बेटा आयुष दुर्गुड़े, ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत है। हार्ट अटैक में कार्डियक मसल स्टॉप नहीं होते हैं, हार्ट अटैक में सम पार्ट ऑफ कार्डियक मसल स्टॉप वर्किंग, सम पार्ट ऑफ कार्डियक मसल स्टॉप वर्किंग, ओके। आप जो बात करें दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट, जो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, दैट इज कॉल्ड बेटा कार्डियक अरेस्ट, उसे अरेस्ट करते, यू आर अंडर अरेस्ट। तो जो विलन होते हैं हाथ का सब सामान छोड़ देते और ऐसा करते, यू आर अंडर अरेस्ट, पुलिस बोलते यू आर अंडर अरेस्ट, तो वो स्टॉप हो जाते हैं, इसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। मींस यू आर अंडर अरेस्ट मींस रुक जाओ जगह पे, तो देयर इज अ सडन स्टॉपेज ऑफ वर्किंग ऑफ कार्डियक मसल और मायोकार्डियम, चलो मैं कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक सॉरी हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट आगे बताने वाला हूं, कि कुछ पार्ट
दोस्तों कार्डियक मसल का कुछ पार्ट, उसको जिसको ब्लड सप्लाई कम है उसने काम करना बंद कर दिया है। सपोज अपने पास 500 लोग है, 500, एक कंपनी, उसमें 500 लोग है, और अचानक उस कंपनी की पूरे कंपनी की लाइट चली जाती है, रात में काम करे, पूरे कंपनी की लाइट चली गई, तो क्या हो जाएगा? 500 के 500 लोग काम करना बंद कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक अरेस्ट। सब लोगों का काम करना बंद हो गया। नाउ हार्ट अटैक मतलब एक यूनिट है, एक कोई तो भी एक डिपार्टमेंट है जिसमें 25 लोग काम कर रहे हैं, और वही की भी वहां की लाइट गई या फिर वहां कुछ प्रॉब्लम आया तो वो 25 लोग ने काम करना बंद कर दिया, उसे कहते हैं हार्ट अटैक। समझे? समझे? यस और नो? कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में समझो दोस्तों, समझे? समझे? हा, कळलं? हा, हे महत्वाचं. पुढे मी आले होते, आहे सिलेबसला, मी शिकवलंच, हार्ट मध्ये आहेलच पुढे, मी परत सांगले रेकॉर्डिंग ऍड मध्ये स्पेसिफिक वर्क स्टॉप। हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोकार्डियम? बेटा मायोकार्डियम का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मसल है ना, मसल का काम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। देखो ये मेरे बाइसेप, ये मेरे बाइसेप, देखो ये क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये हो गया दोस्तों रिलैक्स। कोई भी मसल ले लो, कोई भी मसल ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ये मसल्स से बना है ना, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसा होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोकार्डियम? एंडोकार्डियम दोस्तों फंक्शन, मायोकार्डियम एंडोकार्डियम का वही फंक्शन है, पर एंडोकार्डियम का क्या होता है, वो डायरेक्ट मायोकार्डियम ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है, तो देयर इज अ स्क्वामस एपिथेलियम अराउंड दैट मायोकार्डियम, तो उसी कहते हैं दोस्तों एंडोकार्डियम, याद रखो। और पेरिकार्डियम का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। ओके, पेरिकार्डियम का मेन फंक्शन आहे प्रोटेक्शन। राईट मध्ये 3 आणि लेफ्ट मध्ये 2 का बरं असतात? असं नेचर आहे बेटा, की नेचरनंच तसं बनवलंय की राईट मध्ये 3 कस्प आहेत आणि लेफ्ट मध्ये 2 कस्प आहेत, असं काही स्पेसिफिक रिझन नाही त्यामागं, ठीक आहे? असं काही स्पेसिफिक रिझन नाहीये। हार्टच्या कॅव्हिटीमध्ये ब्लड फ्लुइड असतं की व्हेन मध्ये? हार्टच्या कॅव्हिटीमध्ये। उद्या टेस्ट आहे, आजचे लेक्चर अपलोड करू शकाल का? बर, आभारी राहील सर। काय उन्मेष, बर ठीक आहे बेटा, थँक्यू। मलाच आता ते हे वाटतंय, काय रे लेक्चर नंतर लेक्चर, लेक्चर नंतर लेक्चर झालेत, पर आज करू अपलोड, ठीक आहे? व्हॉट इज द कॅस्केड प्रोसेस? पुढे येईल बेटा कॅस्केड प्रोसेस। कॅस्केड म्हणजे सनवी एकानंतर एक गोष्ट होत जाणे। कॅस्केड प्रोसेस तुम्ही ते बघितलं का? एखादी गोष्ट पडली की दुसऱ्या गोष्टी पडत राहतात बघा, दॅट इज कॉल्ड अ कॅस्केड। एक गोष्ट घडली की बाकीच्या गोष्टी घडत राहणे, त्याला म्हणायचं कॅस्केड। तसं एक कोॲग्युलेशन फॅक्टर ऍक्टिव्हेट झाला बेटा की बाकीचे कोॲग्युलेशन फॅक्टर ऍक्टिव्हेट होऊन कोॲग्युलेशन होलं, त्याला म्हणायचं कॅस्केड प्रोसेस। बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन, त्याला म्हणायचं कॅस्केड प्रोसेस, ठीक आहे? थांबा, हे पाठवतो पुन्हा, हे राहतं असंच, अगोदर हे ग्रुपवर पाठवतो। चला, व्हॉट इज कॅस्केड प्रोसेस? कळालं? डिफरन्स बिटवीन वॉल अँड वॉल, खूप जास्त फरक आहे बेटा। वॉल म्हणजे ही भिंत आहे आणि वॉल म्हणजे खिडकी, असं समजून घे। वॉल म्हणजे तुझ्या घराची भिंत आणि वॉल म्हणजे खिडकी, खिडकी म्हणजे वॉल। द कॉर्डा टेंडेनी आर नॉट अटॅच टू द पॅपिलरी मसल। तसं नसतं बेटा, जर तरच्या गोष्टी नसतात, आलं लक्षात? हे फिजिक्स नाही, इट्स बायोलॉजी। सांगितलं ना वॉल आणि वॉल मधला फरक। वॉल म्हणजे तुमच्या घराची भिंत, वॉल म्हणजे खिडकी। टुमॉरो टेस्ट टॉपिक बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन। तर हे मग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, आणि दूसरे एके अप टू मोलुस्का आ जाएगा, एके अप टू मोलुस्का। सर राइट साइड में 3 कप्स क्यों होते हैं? is the reason that right side of heart carries deoxygenated blood which has a low pressure, hence there are more flaps to prevent the। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। किसने कहा आपको डिऑक्सीनेटेड प्रेशर, डिऑक्सीनेटेड ब्लड में लो प्रेशर है? ऐसा कुछ नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है उसका। सर द डिप्रेशन
एज जास्त झाल्यावर पण परत ओपन होऊ शकतो का की नाही? नाही होणार. टुमॉरो टेस्ट टॉपिक AK आणि BFC कॅस्केड सांगितलं. टुमॉरो टेस्ट टॉपिक सांगितलं. कॉन्ट्रॅक्शन मीन्स पंपिंग है ना सर? यस, कॉन्ट्रॅक्शन मीन्स पंपिंग नाही, कॉन्ट्रॅक्शन में पंपिंग हो जाएगी. कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये पंपिंग होईल. तुम्ही एखादं पंप करता त्यावेळेस पाणी बाहेर येतं ना, तसं ते दाबल्याच्या नंतर कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये पंपिंग होईल. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड द ट्रायकस्पिड अँड राईट? तसं काय नाही सर, त्या पर्टिक्युलर पार्टला काय प्रॉब्लेम होतो नेमका हार्ट अटॅक मध्ये? ओंकार डेथ होऊन जाते, डायरेक्ट डेथ होऊन जाते त्या पार्टची. तिथल्या मसल ज्या आहेत त्यांची डेथ होऊन जाते. इरिव्हर्सिबल डॅमेज येते, इरिव्हर्सिबल, भरून न निघणार ना कधी. जर का तुम्ही जर इमिडिएट त्याला स्ट्रेप्टोकायनेस ड्रग दिलं, इमिजिएट ते जे क्लॉस्ट आहे, समजा ब्लड काय होतं, पेन व्हायला लागतो खूप जास्त, मी स्टोरी सांगल रे ती, पण इमिजिएट जर तुम्ही ड्रग दिलं तर कदाचित ते डेथ होणार नाही. पण एकदा ब्लड सप्लाय चक्क बंद झाला आणि परत ते सुरू नाही झाला तर लगेच डेथ होऊन जाते. डॉमिनोज फेलिंग इज कॅस्केड प्रोसेस. डोमिनोज फेलिंग. प्लीज सेंड नोट्स ऑन स्पार्क बॅच ऑल्सो. बर विशाल. इलियम मीन्स Manisha, ileum is the terminal part of small intestine. Small intestine चे 3 part है बेटा. Manisha Padol, if I am not wrong, that is duodenum, jejunum and ileum. And ileum is the terminal part of small intestine. और दोस्तों that is the third part of small intestine. It is a major site of absorption of nutrients. सेमिल्युनर वॉल नाही समजलं सौरभ? सोप आहे. सेमी ल्युनार म्हणजे काय? ल्युनार म्हणजे अर्धचंद्र आकार आहे ते. लिहा. सेमी लुनार म्हणजे अर्धचंद्राकार, हाफ मून शेप्ड होते हो. सेमी लुनार मतलब क्या है? वो हाफ मून शेप्ड होते हैं दोस्तों, और वो भी 3 कस्प होते हैं, उन्हें भी हाफ मून शेप्ड. कैसे बताऊं मैं आपको सेमी लुनार वॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, समझाता हूं, ठीक है? ओके. बरं ठीक आहे, माईक ऑफ आहे. सर कॉर्डा टेंडनने ब्रेक होऊ शकतं? 100%. खूप जास्त मोठा मॅसिव्ह कार्डियक अटॅक असेल तर कॉर्डा टेंडनने ब्रेक होतील. मी सांगतो कशा ब्रेक होतील. एखादा पार्ट व्हेंट्रिकलचा मूव्ह होत नाहीये, असा रिजिड झालाय, त्याच्यामध्ये ते कॉर्डा टेंडन किती ओढतील त्याला, रप्चर होतात. अरे व्हेंट्रिकल पण रप्चर होतं कधी कधी, एवढं मॅसिव्ह हार्ट अटॅक असतो. ठीक है. हार्टला कौन सा पार्ट होता है इसोफेगस के नीचे? अपेक्स होगा वहां पे. थँक्यू मृणाली मॅमला बर्थडे केल्याबद्दल, विश केल्याबद्दल. हार्टला कोणता सर? एनी फ्लूइड इन पेरिकार्डियल कॅव्हिटी. पेरिकार्डियल फ्लूइड समृद्धी तुम्ही. बर इसोफेगस. बर हार्टला हे झालं. व्हाय इज कार्डियक फंक्शन नेम्ड स्टमक? फॉर स्टमक. एनी रिलेशन? दे लाइज क्लोज टू द हार्ट. ठीक आहे, क्लोज टू द हार्ट आहे म्हणून त्याचं नाव आहे तसं. हार्ट अटॅक झाला. हार्ट अटॅक नायट्रोग्लिसरीन का देतात? ते हे व्हावं म्हणून, क्लॉट बस्ट व्हाव्या, विरघळून जाव्या म्हणून. ठीक आहे, क्लॉट बस्ट व्हाव्या म्हणून देतात. क्लॉट ज्या आहेत त्या बस्ट व्हाव्या म्हणून देतात. ठीक आहे, चलो थँक्यू. पुढचे डाऊट आताच विचारताय तुम्ही. पल्मनरी वॉल आणि अओर्टिक वॉलच्या ओपनिंगला सेमिल्युनर वॉल का म्हणतात? क्या बात आहे अक्षय. सेमिल्युनर वॉल म्हणजे अर्धचंद्र आकार, त्यांचा शेप तसा आहे. सेमिल्युनर वॉल म्हणजे सेमिल्युनर म्हणजे अर्धचंद्राकार. जरा सेमिल्युनर म्हणजे अर्धचंद्राकार, त्यांचा आकार कसा असतो? जसा असा आहे बघ जरा, असं. हे 3 आहे म्हणून त्याला सेमिल्युनर वॉल म्हणतो. याला जोड रे, ह्याला तो जोड. सेमिल्युनर वॉल तुला कळायला लागेल. बर
तुला दाखवतो याला तसं का नाव दिले हे कळालं तुम्हाला. हे बघा सगळे वॉल सिरीज, हे वॉल बघून घ्या, हे सगळे वॉल आहेत. ट्रायकस्पिड, बायकस्पिड. आता हे हार्ट वरूनच कट केलंय, हे हार्ट वरून कट केलंय, काकडी कट करतो का तसं कट केलंय. ठीक आहे, हा झाला ट्रायकस्पिड वॉल. बघा त्याच्या त्या 3 कस्प दिसत आहेत, बघा त्याच्या त्या 3 कस्प दिसत आहेत का, ट्रायकस्पिड वॉल. हा बघा बायकस्पिड वॉल, ह्या त्याच्या 2 कस्प. हा बघा कोणता वॉल आहे, हा आहे अओर्टिक वॉल सिरीज, ह्याच्या पण अशा 3 कस्प आहेत. आणि या अर्धचंद्र आकाराच्या असतात, अर्धचंद्र आकाराच्या, म्हणून ह्याला म्हणायचं सेमी ल्युनर वॉल. बघा ना, हा अर्धा चंद्र आहे, हा अर्धा चंद्र, हा अर्धा चंद्र. ओके, या सेमी ल्युनर वॉल आहेत, समजतंय. हे झालं पल्मनरी वॉल. 3 कस्प आहेत. हा प्रश्न येतो, पल्मनरी वॉल आणि अओर्टिक वॉल मध्ये किती कस्प आहेत? 3. ट्रायकस्पिड वॉल मध्ये सुद्धा 3 कस्प आहेत, याच्यामध्येच फक्त 2 कस्प आहेत बायकस्पिड किंवा मायट्रल वॉल मध्ये. समजतंय. हार्टला कसं कापलंय, काकडी सारखं कापड आहे. ओके, बरं लिहून देतो ना सेमी ल्युनर वॉल बद्दल. ठीक आहे, लिहून देतो. ठीक आहे, चला. ठीक आहे, कळतंय, हे लक्षात ठेवा. याचं मला कोणतरी स्क्रीनशॉट पाठवा, हे कोणतरी मला स्क्रीनशॉट पाठवा याचा. 4 वॉल आहेत, स्क्रीनशॉट पाठवा. पाठवला? थँक्यू, थँक्यू. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू. चला चला थांबूया, चला थांबूया. तुमचं 15 मिनिटं गॅप असायला हवा 2 लेक्चर मध्ये. थांबूया, चलो बाय. पॅरेंट मीट पण घेऊया. ओके, पॅरेंट मीट पण घेऊया. उद्या संडे ना, उद्या घेऊया पॅरेंट मीट 7 वाजता. ठीक आहे, उद्या संडे ना, उद्या चला घेऊ शकतो. ठीक आहे. उद्याचा टॉपिक आहे एके आणि बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन. ठीक आहे ना. थँक्यू बेटा विधी, थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू. पण ते मायक्रो मीटिंग पाहिजेत. असो, चला, थँक्यू. सौरभ, मी का ऑफिसवर उद्या भेटू शकतो, किंवा आपण आज तर थोडस बिझी मी, पण उद्या आपण भेटू शकतो. ठीक आहे, थांबा सर. बोला उन्मेष प्लीज. विश मृणाली मॅम हॅपी बर्थडे. ठीक आहे, चांगलं सर. जसं सिलेबस पुढे पुढे जात तसा वेळ कमी मिळतोय. क्या बात आहे. प्रत्येक विषयाला माझी बायोची पण रिव्हिजन होत नाही आधी सारखी. मला त्या बर बर उन्मेष, हे असं होणारच बेटा. सिलेबस पुढे जाणार आणि रिव्हिजन करायला प्रॉब्लेम येणार. सिलेबस पुढे जाणार, रिव्हिजन करायला प्रॉब्लेम. याच्या तोडगा एकच आहे, DNRP, डेली NCERT रीडिंग प्रोग्राम. त्याच्यामध्ये हा तुमचा डेली NCERT रीडिंग प्रोग्राम लक्षात ठेवा. हा तुमचा, आपण एकदा ह्या मुलांची एक्झाम संपली 12 सप्टेंबरची, ठीक आहे, त्यावेळेस सुरू करूया DNRP. तोपर्यंत तुमचे पण एक 5-7 टॉपिक जास्त होतील, आणखीन 2-4 टॉपिक होतील, आणखीन 2-2 तरी होतील, किंवा हे एक आणि आणखीन एक. तर DNRP मध्ये ते आम्ही रिवाइज करू. तुमचा वेळेचा सदुपयोग आम्ही करून घेऊ. तुम्ही स्वतः केमिस्ट्रीचं DNRP करायला पाहिजे. रिव्हिजनचा टाइम टेबल केल्याच्या नंतर ह्या गोष्टीचा प्रॉब्लेम येत नाही बेटा उन्मेष. टाइम टेबल पाहिजे, आणि तो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो झाला पाहिजे. भले असं म्हणजे काय खूप ह्युमनली इम्पॉसिबल टाइम टेबल नका बनवू, पण बनवून घ्या. ठीक आहे, असं आहे. टाइम टेबल बनवून घ्या. आणि दुसरी गोष्ट, DNRP मध्ये हे कव्हर होईल सगळं. ठीक आहे, चलो बाय.
नेक्स्ट जम्बो कधी असणार आहे? 5 सप्टेंबरला नेक्स्ट जम्बो आहे. उद्या किती वाजता भेटत येईल? सौरभ, उद्याच्याला आपण 11:30-12च्या दरम्यान भेटूया बेटा. हा, 11:30-12च्या दरम्यान. ठीक आहे, चालतं. बाय.